Hello dear students, I Muhammad Murtaza once again welcome you all on this platform of e-classes. So dear students, in the last video we had talked about the Mughal Emperor Akbar. In that particular video we saw how Akbar consolidated, how Akbar expanded his empire through his military conquests. As we saw the expansion of Mughal Empire, the Mughal Empire was expanded on a very considerable scale, on a very large scale. It was extended up to Kashmir in the north. In the east, it was expanded up to the Brahmaputra river, and in the west, the whole region of Rajasthan used to be the part of Mughal Empire, and in the south, some parts of Deccan were used to be the part of Mughal Empire. So it was expanded on a very large scale. And we also saw that Akbar didn't rely on his military conquests alone to expand, to consolidate his empire. Besides his military conquests, he used other tactics as well. For example, his Rajput policy and the religious policy of tolerance were quite integral as far as the expansion of his empire, as far as the expansion of Mughal Empire was concerned. So he established a matrimonial alliance with the Rajput queens. In his Rajput policy, he established a matrimonial alliance with the Rajput queens and appointed the able Rajputs on high posts in the administration. And in his religious policy, he followed a very tolerant religious policy. He treated all religions equally. He didn't favor on the basis of religion. He observed the festivals of all religions, and he gave respect to every religion. So these two policies were quite integral behind the expansion and consolidation of his empire. So dear students, in this video I'll be dealing with an extremely important topic of the ongoing chapter. So our today's topic is the Mughal administrative system of the Mughals. So in this video we will talk about the important features of Mughal administration, such as the central administration, the provincial administration, the land revenue administration, the Mansabdari system. So all these hopefully will be discussed in this video. So first of all, let's try to understand what administration is. एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, हम इस पे थोड़ा बात करेंगे. तो जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की या एक कंट्री के हम कह सकते हैं गवर्निंग सिस्टम को ही, एक कंट्री को चलाने की निज़ाम को ही एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं. तो जहां तक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मुगलों ने एक बहुत ही साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश किया था. स्पेसिफिकली अकबर ने एक बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश किया था. और उसके बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए, चाहे वो शाहजहां हो, चाहे वो जहांगीर हो, या चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो लेटर मुगल्स हो, उन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश की. बाद में इसी एडमिनिस्ट्रेशन के नक्श कदम पर चलने की उन्होंने कोशिश की. तो अकबर ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश किए थे. एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग पहलू को देखने के लिए, अलग अलग पहलू की देखभाल करने के लिए उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश किए थे. तो जहां तक उसकी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, तो उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स में हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, उसके बाद लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, और मनसबदारी सिस्टम आ जाता है. ये जो चार चीज़ें जो थे वो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे. ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे ये फंक्शन करता था. तो जहां तक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मुगलों ने एक बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश किया था. जहां तक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये हाईली सेंट्रलाइज्ड थी, जहां सभी पावर जो है वो एम्परर के हाथ में हुआ करता था. चाहे वो मिलिट्री डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के हो, इन दोनों एस्पेक्ट्स के हेड जो था वो एम्परर हुआ करता था, और पूरा पावर जो थे वो एम्परर के हाथ में हुआ करता था. और कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करता था, जो एम्परर को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में एड करता था, एम्परर की मदद करता था. तो एक मंत्रिमंडल हुआ करता था अकबर के टाइम पे, जो स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में एम्परर की मदद करता था. तो इस मंत्रिमंडल में सबसे पहला मंत्री होता था, डियर स्टूडेंट्स, वजीर. वजीर जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता था इस कैबिनेट का. ही वाज नेक्स्ट टू किंग विद रिस्पेक्ट टू रैंक. रैंक के हिसाब से वो
एम्परर के बाद ही वजीर होता था। तो एम्परर को एक चीफ एडवाइजर कहलाते थे, जो वजीर को चीफ एडवाइजर कहलाते थे, जो एम्परर का चीफ एडवाइजर हुआ करता था। उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन दैट कैबिनेट वाज दीवान। दीवान जो होता था वो फाइनेंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। तो वो एक फाइनेंशियल मिनिस्टर हुआ करता था उस टाइम पे। दीवान जो जितने भी रेवेन्यू अफेयर्स होते थे उसको दीवान ही संभालते थे। तो नेक्स्ट इन दैट कैबिनेट वाज मीर बख्शी। ही वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। इनफैक्ट वो आर्मी का पे मास्टर होता था, आर्मी के सैलरीज के लिए वही मीर बख्शी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर माना जाता था इन दैट वेरी कैबिनेट। तो उसके बाद अगला मीर समन होता था, जो एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता था उस कैबिनेट में, उस मंत्रिमंडल में, वो मीर समन होता था, जो इंपीरियल हाउस होल्ड का इंचार्ज होता था। इंपीरियल हाउस होल्ड जहाँ पे एम्परर के फैमिली रिजाइड करते थे, जहाँ पे एम्परर के फैमिली रहते थे या उसके रिलेटिव्स रहते थे, उसी को इंपीरियल हाउस होल्ड कहलाते थे। तो उसके इंचार्ज जो है वो मीर समन हुआ करता था। नेक्स्ट इन दैट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स वाज काजी। ही वॉज द हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट। जुडिशरी का वो हेड हुआ करता था और पूरी जुडिशियल अफेयर्स को काजी ही संभालते थे। और एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ करता था उस मंत्रिमंडल में जिसे सदर कहते थे। वो चैरिटेबल और रिलीजियस एंडाउमेंट्स का हेड हुआ करता था। तो ये जो 6 मिनिस्टर्स थे ये एम्परर को स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में एम्परर की मदद करते थे। तो ये थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मौलूम के टाइम पे। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए पूरे मुगल एम्पायर को जो है वो अलग अलग सोबास में डिवाइड किया गया था। मुगल एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था जिसे सोबास कहते थे। तो उस सोबे में एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था जिसे सूबेदार कहता था। वही पीपल वेलफेयर के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता था। तो सूबेदार को 2 और ऑफिशियल्स स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में मदद करता था। एक होता था फौजदार जो मिलिट्री कमांडर होता था एक प्रोविंस का, और दूसरा होता था कोटवाल जो पुलिस हेड हुआ करता था उस प्रोविंसेस का, जो उस प्रोविंसेस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में एम्परर की मदद करता, वो सूबेदार की मदद करता था। तो एक हम ये कह सकते हैं एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का। एम्पायर को अलग अलग सोबास में डिवाइड किया हुआ था और सोबास को फर्दर डिवाइड किया गया था सोबास को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए सरकार्स में, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो वहां पे अलग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था उस सरकार को चलाने के लिए। सरकार में एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखने के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हुआ करता था। एक फौजदार हुआ करता था जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता था उस सरकार में, और एक अमलगुजर हुआ करता था जो इनफैक्ट सुपरवाइजर हुआ करता था रेवेन्यू कलेक्शन का। तो वही रिस्पॉन्सिबल होता था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक सरकार में। तो पहले एम्पायर को सोबास में डिवाइड किया गया था, सोबास को फर्दर डिवाइड किया गया था सरकार्स में। तो सरकार्स को फर्दर डिवाइड किया गया था और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जिसे परगनास कहते थे, वहां पे अलग एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था परगनास को चलाने के लिए। और बहुत सारे विलेज को मिलाकर एक परगना बनता था, बहुत सारे विलेज को मिलाकर एक परगना बनता था। तो जहां तक हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें यह पता चलता है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर जो था वो हमारे आज के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से काफी रिजेंबल्ड थे, काफी सिमिलर थे। फॉर एग्जांपल हमारा सेंटर में एक सेंट्रल हमारा गवर्नमेंट हुआ करता है, उसके बाद हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स थे, बहुत सारे यूनियन टेरिटरी से, बहुत सारे स्टेट्स से जहां अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करते हैं। उसके बाद स्टेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स को तहसील्स में, बहुत सारे विलेज को मिलकर तहसील बनते हैं। तो वैसा ही एक स्ट्रक्चर मुगल के टाइम पे भी हुआ करता था। स्ट्रक्चरली देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो था वो काफी सिमिलर था, लेकिन फंक्शनली जो था वो काफी अलग था। आजकल हमारे स्टेट में क्या होता है, एक ऑटोनोमस पावर होता है स्टेट्स को, जो मुगलों के टाइम पे सूबेदार को नहीं हुआ करता था। एट द एंड ऑफ द डे सारा डिसीजन जो है वो एम्परर लेते थे।
एम्परर के पास पूरा पावर जो था वो एम्परर के पास ही होता था। तो ये थे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मुगल टाइम पे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल्स वाज द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे 10 साला सिस्टम भी कहते थे। तो लैंड रेवेन्यू जो था इनफैक्ट वो इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता था, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टू द स्टेट। स्टेट का इनकम सोर्स जो था वो लैंड रेवेन्यू था। पीजेंट्स से जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वही स्टेट का मेन सोर्स माना जाता था। तो अकबर ने अपने लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अपने फाइनेंस मिनिस्टर राजा तोदरमाल, जो फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का, उसके साथ मिलकर अच्छे से रिफॉर्म किया था, बहुत ही आला पैमाने पे उसको रिफॉर्म किया था। जो शेरशाह सूरी ने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स इनिशिएट किए थे उसी को ही उन दोनों ने फर्दर कैरी आउट किया था। माइनर इंप्रूवमेंट्स विद माइनर इंप्रूवमेंट्स उसको आगे चलाया था। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कहा था शेरशाह सूरी को फोररनर ऑफ अकबर कहा जाता है। तो शेरशाह सूरी को डियर स्टूडेंट्स फोररनर ऑफ अकबर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को शेरशाह सूरी के अकबर ने फॉलो किया था, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को अकबर ने फॉलो किया था। शेरशाह सूरी ने जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को चलाया था उसी को ही अकबर ने अडॉप्ट किया था, इसीलिए शेरशाह सूरी को फोररनर ऑफ अकबर कहा जाता है। तो जहां तक लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करें, लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने से पहले राजा तोदरमल ने क्या किया था, वो अकाउंट में लेते थे एवरेज प्रोड्यूस को और एवरेज प्राइस को, अलग अलग क्रॉप्स के पिछले 10 साल के जो अलग अलग प्राइस हुआ करता था, अलग अलग क्रॉप्स का जो प्रोड्यूस हुआ करता था उसको अकाउंट में लेते थे। सो बिफोर फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू, द एवरेज प्रोड्यूस एज वेल एज द एवरेज प्राइस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स फॉर द लास्ट 10 years वर टेकिंग इनटू अकाउंट। उसको अकाउंट में लेते थे, उसके बाद ही लैंड रेवेन्यू फिक्स करते थे और लैंड क्वालिटी को भी कंसिडरेशन में रखते थे। लैंड रेवेन्यू फिक्स करने से पहले लैंड के फर्टिलिटी के हिसाब से लैंड रेवेन्यू जो है वो पीजेंट्स पर फिक्स करते थे। और लैंड रेवेन्यू जो था नॉर्मली 1/3 हुआ करता था पूरी एनुअल प्रोड्यूस का, पूरी प्रोडक्शन का, एनुअल प्रोडक्शन का 1/3 जो है वो पीजेंट्स को लैंड रेवेन्यू के तौर पर गवर्नमेंट को देना पड़ता था। और फेमेंस के टाइम पे या क्रॉप्स फेलियर के टाइम पे उनको कंसेशन भी दिया जाता था, कंसेशन भी उनके साथ किया जाता था, पीजेंट से लैंड रेवेन्यू नहीं लेते थे। तो जैसे कि 10 साल मैंने पहले बोला कि पिछले 10 साल का एवरेज प्रोड्यूस और एवरेज प्राइस क्रॉप्स को अकाउंट में लेते थे लैंड रेवेन्यू फिक्स करते वक्त, तो इसीलिए उसको 10 साला सिस्टम कहा गया। 10 इन हिंदी मीन्स 10। तो ये थे लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन रिफॉर्म्स की वजह से पीजेंट्स की बर्डन जो है वो काफी हद तक कम हो गए थे, क्योंकि उनको फर्टिलिटी के हिसाब से एक तो टैक्स पे करना होता था, रेवेन्यू पे करना होता था, और एवरेज प्रोड्यूस के हिसाब से उनको रेवेन्यू पे करना होता था गवर्नमेंट को। इसी वजह से उनकी बर्डन जो है, उनकी बोझ जो है एज कंपेयर टू दी अर्लियर पीरियड वो काफी कम था पीजेंट्स का। तो अगला इंपॉर्टेंट फ्यूचर है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का या एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है दोस्तों मनसबदारी सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, मनसबदारी सिस्टम इट्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जहां तक मनसबदारी सिस्टम की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मनसबदारी सिस्टम एक्चुअली क्या था, मनसब एक्चुअली होता क्या है। तो मनसब इज एन अरबिक वर्ड, लिटरली मींस रैंक, पोजीशन और स्टेटस। तो मनसब का लिटरल मीनिंग होता है ओहदा, ओहदे को ही मनसब कहते हैं। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में मनसबदार क्या होता था। सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो मुगल एम्पायर जो है वो काफी एक्सपेंडेड थी। तो ऐसे ही एक्सपेंडेड एम्पायर को चलाने के लिए अकबर ने डाइवर्स बॉडीज को रिक्रूट किया था। फॉर एग्जाम्पल, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देयर वर द तुर्रानीज, द सो कॉल्ड टर्किश नोबल्स। तुर्रानीज भी थे, जो टर्किश नोबल्स थे उसे तुर्रानीज कहते थे, तो वो भी मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट था। और ईरानीज भी थे, इंडियन मुस्लिम्स भी थे, मराठास भी थे, और राजपूत्स भी थे, अफगान्स भी थे। तो डाइवर्स बॉडीज को अकबर ने रिक्रूट किया गया था। तो मनसबदार मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में उस इंडिविजुअल को रिफर करता है, उस इंडिविजुअल को कहता है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई
पोजीशन होता है, कोई रैंक होता है, कोई स्टेटस होता है। हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल को मनसबदार कहलाते थे। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को मनसबदार कहलाते थे। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में मनसबदार उस इंडिविजुअल को कहलाते थे जिसका कोई पोजीशन होता था, जिसका कोई रैंक होता था। तो मनसबदारी सिस्टम को 1570 में इंट्रोड्यूस किया गया अकबर ने। तो ये अकबर के टाइम पे ही इंट्रोड्यूस हुआ था और अकबर के टाइम पे ही ये काफ़ी हद तक इवॉल्व हुई थी। तो पहले क्या होता था, इनिशियल फेज में मनसबदार का सिर्फ एक ही रैंक हुआ करता था। तो बाद में इस सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अकबर ने डबल रैंक इंट्रोड्यूस किया। दैट वाज इन द 40th रेगनल ईयर, दैट्स इन 1595-96। 1595-96 में डबल रैंक इंट्रोड्यूस हुआ, ज़ात और सवार। तो जहाँ तक ज़ात और सवार की बात करें, डिफरेंट स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग ज़ात एंड सवार। So first of all, let's try to understand ज़ात एंड सवार एज पर दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ज़ात और सवार जो होता था वो एक मनसबदार का दो रैंक होता था, ज़ात और सवार। ज़ात जो उसके पर्सनल स्टेटस के आधार पे जो रैंक होती थी, जो उसके पर्सनल स्टेटस के बुनियाद पे रैंक होती थी, उसे ज़ात कहलाते थे। ज़ात वाज द रैंक बेस्ड ऑन द पर्सनल स्टेटस ऑफ दैट वेरी ऑफिशियल। तो सवार जो होता था, नंबर ऑफ हॉर्समैन ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन, और नंबर ऑफ हॉर्समैन एंड सोल्जर उसके आधार पर जो रैंक होता था उसे सवार कहलाते थे। तो सवार वाज द रैंक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हॉर्समैन एंड सोल्जर्स दैट मनसबदार वाज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन। तो एक्चुअली एक ग्रेडिंग सिस्टम थी जो मेनली तीन चीज़ों को फिक्स करती थी। नंबर 1 रैंक, नंबर 2 सैलरी एंड नंबर 3 द मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रैंक और सैलरी को ज़ात ही डिटरमाइन करते थे। जो ज़ात रैंक होती थी वही सैलरी और रैंक को डिटरमाइन करती थी एक ऑफिशियल की। जितना ऊंचा उसका ज़ात होता था उतना ही प्रेस्टिजियस उसका पोजीशन होता था इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, और उतना ही ऊंचा उसका, उतना ही ज़्यादा उसका सैलरी होता था। तो जब हम अलग वीक्स की बात करते हैं ज़ात और सवार पे, तो सबसे पहले आते हैं ब्लॉकमैन। तो ब्लॉकमैन कहता है, डॉक्टर ब्लॉकमैन कहता है कि ज़ात जो है वो नंबर ऑफ ट्रूप्स को इंडिकेट करता है। ज़ात इंडिकेटेड द नंबर ऑफ ट्रूप्स दैट ए मनसबदार वाज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन। तो एक मनसबदार के कमांड में जो नंबर ऑफ ट्रूप्स होते थे उसको ज़ात इंडिकेट करते थे। एंड सवार इंडिकेटेड द नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ हॉर्सेस, नॉट हॉर्समैन। एक्चुअल नंबर ऑफ हॉर्सेस को इंडिकेट करता था सवार। तो ये डॉक्टर ब्लॉकमैन का कहना है। तो उसके बाद आते हैं डॉक्टर आर पी त्रिपाठी। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट सवार जो होता था वो एक एडिशनल ऑनर होता था। ये ऑब्लिगेटरी नहीं था, या ये ऑब्लिगेशन नहीं था, ये नेसेसरी नहीं था कि मनसबदार को कि वो सवार के द्वारा इंडिकेट किए हुए नंबर्स को, नंबर ऑफ हॉर्समैन को या नंबर ऑफ सोल्जर्स को वो मेंटेन रखे। इट वॉज नॉट ऑब्लिगेटरी एट ऑल। तो ये एक एडिशनल ऑनर होता था जिसके लिए उसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते थे। देयर वाज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ मनसबदार टू मेंटेन द नंबर ऑफ हॉर्सेस और नंबर ऑफ सोल्जर्स इंडिकेटेड बाय सवार। तो ये डॉक्टर आर पी त्रिपाठी का कहना है। तो उसके बाद एस.के. राव कहता है कि ज़ात जो थे वो नंबर ऑफ इन्फेंट्री को इंडिकेट करता था दैट मनसबदार वाज एक्सपेक्टेड टू एंटरटेन। नंबर ऑफ इन्फेंट्री उस मनसबदार के अंडर जो नंबर ऑफ इन्फेंट्री होती थी उसी को ज़ात इंडिकेट करता था, ज़ात जो है उसको इंडिकेट करता था। और सवार जो है कैवलरी को इंडिकेट करता था उस मनसबदार के अंडर। उस मनसबदार के अंडर जितने भी कैवलरी होता था, कैवलरी को सवार इंडिकेट करता था। वैसे ही सम अदर स्कॉलर्स सच एज अब्दुल अजीज एंड एस.आर. शर्मा was of the opinion that Zat indicated the fixed number of elephants, horses, beasts, carts, etc. under the command of a mansabdar, whereas but not horsemen. Here again, not horsemen. Sawar indicates the actual number of cavalry under ए मनसबदार। सवार जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ कैवलरी को इंडिकेट करता था एक मनसबदार के अंदर, और ज़ात जो है नंबर ऑफ हॉर्सेस, नंबर ऑफ बीस्ट्स, नंबर ऑफ एलिफेंट्स, बट नो हॉर्समैन और सोल्जर।
तो ये अब्दुल अजीज और एसआर शर्मा का कहना है। वैसे ही डॉक्टर सतीश चंद्र इन हिज बुक द मिडाइवल इंडिया वो ये कहता है कि जात जो है वो पर्सनल पे को इंडिकेट करता था, पर्सनल स्टेटस को इंडिकेट करता था। जात इंडिकेटेड द पर्सनल पे एंड स्टेटस ऑफ ए नोबल, और सवार रैंक जो होता था वो एक्चुअल नंबर ऑफ हॉर्समैन ही वाज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन। एक्चुअल नंबर ऑफ हॉर्समैन जो उसको मेंटेन रखना पड़ता था मुगल एम्पायर की सर्विस के लिए, उससे जो उम्मीद करती थी नंबर ऑफ हॉर्समैन को मेंटेन करने की, उसी को सवार इंडिकेट करता था। तो ये थे डिफरेंट व्यूज ऑन जात एंड सवार। और डॉक्टर सतीश चंद्र ये भी कहता है कि जात जो है वो उसके अंडर हॉर्समैन को, उसके अंडर सोल्जर को, उसके अंडर कार्ट्स को, बीस्ट्स को, एलिफेंट्स को इंडिकेट करता है। ये भी डॉक्टर सतीश चंद्र लिखते हैं। तो उसके बाद मनसबदार्स को लैंड ग्रांट्स मिलते थे सैलरी के तौर पर। मनसबदार्स वर पेड इन द फॉर्म ऑफ लैंड ग्रांट्स कॉल्ड जागीर्स, उसको जागीर कहलाते थे। तो उनको सैलरी के तौर पर लैंड ग्रांट्स मिलते थे जिसे जागीर कहलाते थे। तो ये जो जागीर सिस्टम था ये काफ़ी सिमिलर था इक्ताज से, इक्तदारी सिस्टम से, विच वॉज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो इक्तदारी सिस्टम होता था वैसे ही ये जागीरदारी सिस्टम थी। लेकिन जो मेजर डिफरेंस थी वो ये थी, इक्तदारी सिस्टम में क्या होता था, जो इक्ता होल्डर्स होते थे जिनको मुफ्तीस कहलाते थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते थे, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे अपने इक्तास में लॉ और ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू राइट्स होते थे, उनको यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू राइट्स होते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं होते थे। वो जागीर जो है एक्चुअली मुगल एम्पायर से बिलोंग करते थे और जागीर हेरिडेटरी भी नहीं होता था। उस मनसबदार के मरने पे जागीर जो है वो वापस एम्पायर को चला जाता था। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, सिर्फ जो रेवेन्यू राइट्स थे जागीर पे, उसको सिर्फ रेवेन्यू राइट्स होते थे। उस जागीर के रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते थे अपने सैलरी के तौर पे। वो एक्चुअली वो मनसबदार जो है वो मुगल एम्पायर के दूसरे पार्ट में सर्विस दे रहा होता और उसका जागीर जो है वो कोई और एम्पायर के कोई दूसरे पार्ट में उसका जागीर हुआ करता था। तो इससे ये पता चलता है कि जो जागीर पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं होते थे। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम।